اللہ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ ذرا گرم ہو جاؤ پورا مجمع جذبات کے ساتھ، ذرا حضور کو اپنی حضور کی دیوانگی کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع بولے لبیک یا رسول اللہ۔ جو کھڑے گئے، جو یہاں بیٹھے گئے، جو ادھر ہے علماء کرام سارے لوگ بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اب ذرا سنتے چلیے، بات آ گئی، لوگ کہتے ہیں اس جماعت میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو دشمنان اسلام کو دندان شکن جواب دے سکے۔ ارے یہ پہلی بات نہیں ہے مولانا ممنون صاحب کی بلا، یہ پہلی بات نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ تو بڑی پرانی بات رہی ہے، پرانی تاریخ رہی ہے کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا ہے۔ نمرود نے خدا کا انکار کیا، قارون نے خدا کا انکار کیا، حامان نے خدا کا انکار کیا، شداد نے خدا کا انکار کیا، اور آئیے قریب آ کر دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہمارے اوپر بے انتہا احسانات ہیں، آپ کے اوپر ہم جن کو اپنے آپ کو جن کا مقلد کہتے ہیں وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ذرا مسکرا کر بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ سنیے گا، یہی سیم کنڈیشن امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں آیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں سب سے زیادہ اگر ارتداد کا فتنہ کسی کے زمانے میں اٹھا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دور رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ایک تہریہ ان کے زمانے میں کھڑا ہوا، بڑا پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہتا تھا۔ ایک دن وہ ٹینگے مارنے لگا چاروں طرف اور لوگوں میں کہنے لگا، لوگوں دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، وہ آگ کا پجاری، وہ مرتد، وہ کہنے لگا اللہ ہے ہی نہیں۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے وقت کے امام اور ہم اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے گئے، فرمایا او دہریا، ارے تو کیا چیلنج کرتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، اور میری اس بات کو کوئی غلط بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور میرا دعویٰ اتنا مضبوط ہے۔ امام اعظم نے فرمایا چلو پھر مناظرہ ہو لیا جائے۔ کہا کہ ہو جائے، وقت متعین ہو گیا اور جگہ بھی مقرر ہو گئی۔ غور سے سنیے گا، کہا کہاں مناظرہ ہوگا؟ کہا کہ فلاں بڑے میدان میں مناظرہ ہوگا، وقت متعین ہے، تاریخ متعین ہے، دن متعین ہے، ٹائم متعین ہے اور میدان متعین ہے۔ سارے لوگ وقت مقررہ پر اس میدان میں پہنچ گئے اور لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے امام اعظم انہیں جواب وہ مرتد کو دیتے کیسے ہیں، اور مرتد ہارتا ہے کہ نہیں، جو اتنے دنوں سے وہ ڈھونگ مچا کر رکھا ہے اور نوٹنگی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سنیے گا، امام اعظم ابو حنیفہ وقت مقررہ پر مناظرہ میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ دہریہ، وہ مرتد، وہ دہریہ وہ چاروں طرف ڈینگے مارنے لگا۔ دیکھو مولانا نہیں آیا، اگر وہ سچا ہوتا، اگر وہ حق پر ہوتا، اگر یہ بات سچی ہوتی کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا خدا ہے تو پھر مولانا وقت پہ کیوں نہیں پہنچتا مناظرے میں، میدان میں مولانا آتا کیوں نہیں؟ لیکن یہ ڈینگ مار ہی رہا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا مسکرا کر بولے نا سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ سنیے گا، امام اعظم چلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا، ہنگامہ ہو گیا، کہا دیکھیے امام اعظم چلے آ رہے ہیں۔ اس دہریہ نے کہا مولانا شرط کے مطابق آپ مناظرہ ہار چکے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کیوں؟ کہا شرط یہ ہے جو وقت مقررہ پر نہیں پہنچے گا اس کی شکست مانی جائے گی، اس لیے آپ نہیں پہنچے تھے۔ ذرا سنیے گا غور سے سنیے، ادھر دیکھیں۔
मैं 14 मिनट या 13 मिनट में खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, बस उसी पे बोल रहा हूँ, उसी पे जरा सुनिएगा, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ओ भाई ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत के साथ बोले ना या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुनिएगा, इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले आए, अल्लाह अकबर। इमाम आजम ने फरमाया, ओ दहरिया सुनो, क्या मेरी कोई मजबूरी होगी तो मेरी मजबूरी समझी जाएगी कि नहीं, मेरी मजबूरी देखी जाएगी कि नहीं? कहा कि हाँ, क्यों नहीं देखी जाएगी? ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए, इनसे आप पूछिए। इमाम आजम ने फरमाया, मेरी मजबूरी ये रही कि आने में रास्ते में एक दरिया पड़ता है, दरिया को पार कश्ती के जरिए किया जाता है। मैं जब वहां पहुंचा नदी के किनारे, दरिया के किनारे, तो मैंने देखा वहां कोई कश्ती मौजूद नहीं है। मैं परेशान हो गया, अभी 5 मिनट बैठा ही था, अचानक देखा कुछ लकड़ी के फट्टे, कुछ लकड़ी के तख्ते अचानक पानी में बहकर आ गए और मैंने अजीब मंजर देखा। वो लकड़ी के तख्ते अपने आप आपस में जुड़ने भी लगे। जब जुड़ गए तो अचानक एक नाव तैयार हो गया, एक कश्ती तैयार हो गई। अब मैं उस पे देख सोचा आगे कैसे जाऊं। अचानक वो कश्ती अपने आप चलने लगी, मैं उस कश्ती पे बैठ भी गया। कश्ती ने मुझे वो दरिया पार करा दिया। वो दहरिया कहने लगा, आप अकल से पैदल तो नहीं है, ये अकल वाला बच्चा भी ऐसी बात नहीं कर सकता कि अपने आप तख्ते आ गए, अपने आप तख्ते मिल गए, नाव तैयार है, कश्ती तैयार हो गई और कोई चला भी नहीं रहा था, आपको लेके कश्ती दरिया पार करा रही है। आप अकल से पैदल तो नहीं है। अब जरा सुनिएगा, इमाम आजम का जवाब सुनिए। इमाम आजम से जब दहरिया ने कहा, कश्ती अपने आप नहीं बन सकती है, उसे कोई बनाने वाला चाहिए। कश्ती अपने आप नहीं चल सकती है, उसे कोई चलाने वाला मल्लाह चाहिए। इमाम आजम जलाल में आते गए और फरमाते गए, ए दहरिया, अरे यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे जब एक छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले खुदा के कैसे बन सकती है? क्या बात है, बहुत उम्दा, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। कहा कि अब अगर वो कश्ती बगैर चलाने वाले के एक कश्ती नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक के कैसे चल सकती है? पता चला कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जरा पूरा मजमा बोलो, वही खुदा है। बोलिए खुदा है वही। चांद को जो चला रहा है वही खुदा है। ऊंची आवाज में, ताकि ये शहादत की उंगली गवाह बन जाए, किसी का हाथ नीचे न रहे, जो बैठे गए या खड़े गए हुजूर नबी ने मिल्लत देख रहे गए, हैदरी कॉन्फ्रेंस में आए गए। जरा पूरा मजमा बोले, वही तो है जो, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही। सूरज को कोई चला रहा है, वो कौन है? चांद को चलाने वाला वही खुदा है। जमीन को बनाने वाला वही खुदा है। अब जरा सुनिएगा, जो मंत्र मैंने पढ़ा है इस किताब से, श्वेताश्वर से, इसमें लिखा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारंक नेमा विधोती भांति कुतोया मग्नि। इसमें लिखा है कि लोगों, न तत्र सूर्यो भाति, कि ये सूरज अपने आप प्रकाशित नहीं होता है, और न चंद्र तारंक, न ये चांद तारे अपने आप बन गए हैं। और कहा, नेमो विधो तो भांति कुतो यगमनी तमे भांत भूनाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिंद विभाति। लिखा है वहां सूर्य, ये सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चंद्रमा और तारे प्रकाशित होते हैं, और न ये बिजलियां चमकती है। फिर ये अग्नि तो कहां प्रकाशित हो सकती है, जब चांद की रोशनी बगैर उसके हुक्म के नहीं हो सकती है। ये सूरज की रोशनी बगैर अल्लाह के हुक्म के नहीं है, तो फिर आग कैसे रोशन हो सकती है? ये बिजलियां कैसे चमक सकती है? तस्य भाषा सर्वमित विभाति। हर चीज में अल्लाह का नूर शामिल है। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। एक तो ये बात हो गई, ये मंत्र मैंने पढ़ा, और आगे सुनिए, लिखा गए लोगों, एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्मादि अच्छा साक्षी चेता केवल
निर्गुणस्थ। कहा लोगो सर्वभूते सगुणा, कहा के लोगों इस जमीन आसमान चांद सूरज इन सारी चीजों का कोई बनाने वाला है और वो ऐसा है जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जरा सुनिएगा, अब जरा बात आ गई। एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, कहा वो कैसा है, तो मैंने वो क्या नाम किताब का है, रामायण। इस किताब से मैंने एक मंत्र पढ़ा था। इस किताब में लिखा गया कि लोगों वो खुदा, उस खुदा का तसव्वुर क्या है, यानी हम कैसे समझे। एक शख्स मेरे पास एक जलसे के बाद आ गया, कहने लगा मौलाना खुदा का वजूद है तो खुदा दिखता क्यों नहीं है। हमने कहा भाई सारी चीजें देखने वाली नहीं होती, दुनिया में भी जो चीजें हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे देखा नहीं जाता बल्कि उसका ताल्लुक सुनने से है। कुछ चीजों का ताल्लुक सुनने से है, एहसास से है। अब जब वो नहीं मानने लगे, हमने कहा अब आपके पास अकल होती तो जरूर मान लेते। कहा हमने एमए कर लिया है, हमने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली है और आप हमें छोटी सी बात कह डाले कि अकल होती तो फिर क्या, अकल होती तो जरूर समझते। मैं अकलमंद आदमी हूँ। मैंने कहा अगर अकल है आपके पास, अगर अकल है मौजूद है तो फिर आप हमें अकल दिखाइए अपनी कि अकल है किधर। कहा अकल तो दिखती नहीं है। मैंने कहा जब अकल को देख नहीं सकते गए तो अकल बनाने वाले खुदा को कैसे देख सकते हैं। इसलिए जरा सुनिएगा, मैंने कहा बर्फ ठंडी है या ठंडा है या गर्म, कहा कि ठंडा। मैंने कहा ये बताइए ठंडा है, वो ठंडा हमें दिखाइए कि बर्फ ठंडा, वो बर्फ नहीं देखना ठंडा देखना है। कहा ठंडा कैसे देखेंगे। हमने कहा हवा चल रही है, कहा बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमने कहा फिर वो हवा नजर क्यों नहीं आती। कहा इसका ताल्लुक देखने से नहीं है, एहसास से है। मैंने कहा अरे जब हवा को नहीं देख सकते तो हवा बनाने वाले खुदा को कैसे देख सकते हो, वो नजर नहीं है तुम्हारे पास। अब जरा सुनिएगा, इसी बीच में मैंने एक मंत्र और पढ़ा और उसमें लिखा गया लोगों जब बात खुदा की हो तो खुदा के महबूब की बात भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने एक मंत्र पढ़ा अस्समा सुगमा रूहा देव तत्तम जगतपति असिना साधु आश्चर्य गुणवती। कहा लोगों वो अल्लाह का महबूब भी लाजवाब है, उसका जवाब नहीं है। मैंने जब सारी किताबों का अध्ययन किया तो एक खैर मुस्लिम ने कहा कि मैंने हुजूर को बड़ा पढ़ा, मैंने हुजूर को बहुत ज्यादा पढ़ा, मैंने हुजूर पे बहुत ज्यादा स्टडी किया तो मुझे जो बहुत खूबियां नजर आई उनमें से कुछ ऐसी खूबियां थी जो मैं बयान करता हूँ। कहा लोगों वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसे मुसलमान जिनके लिए अपनी जान निछावर करते गए, उनमें एक खूबी ये थी गिरी नील गंधा। जब वो चलते थे तो उनके जिस्म अतहर से इतनी खुशबू निकलती थी, इतनी खुशबू फूटती थी कि उनके पसीने मुबारक की खुशबू से सिर्फ वो जगह ही नहीं बल्कि पूरा इलाका खुशबूदार हो जाता था। सुभान अल्लाह। गिरी गंधा। और का दूसरी खूबी ये थी अति ज्योति में प्रकाशम। कहा उनके चेहरे से इतना नूर फूट रहा था कि उनके चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि जहां वो तशरीफ फरमा होते थे सिर्फ वो जगह ही नहीं बल्कि पूरा इलाका जगमग जगमग रोशन रोशन हो जाता था। सुभान अल्लाह। तीसरी खूबी कहा चंद्र मुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान। कहा लोगों तीसरी खूबी ये उनके अंदर थी कि जहां उनसे पहले लोग बेटियों को कब्र में जिंदा डालकर मौज पे ताव देते थे, लेकिन वो जब तशरीफ लाए, आमना के लाल तशरीफ लाए, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो बेटियों को वो मकाम अता फरमा दिया। फरमाया लोगों अगर बेटी तेरे घर में गए तेरे लिए रहमत है, अगर बीवी है तेरे लिए मोहब्बत है, और अगर औरत बहन की शक्ल में है तेरे लिए वो इज्जत है, और अगर माँ बन जाएगी तो उनके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को डाल दिया है। ये मज़ा।
माशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अरे भाई ऐसे बोलेंगे तो फिर खत्म कर दें। जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई की या रसूल अल्लाह। आप नहीं बोल रहे। अभी कुछ दिन पहले एक नारा चला था, आई लव। ऊंचा बोले, ऐसे नहीं। क्या नारा चला था? आई लव। ऐसे नहीं, हुजूर से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से क्या नारा चला था? आई लव। बच्चा भी कह रहा था आई लव, बूढ़ा भी कह रहा था आई लव, जवान भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद। लेकिन सुने प्यारे, आई लव मोहम्मद। मैं एक बात कहूँ जिम्मेदारी से, आई लव मोहम्मद कागज पे लिखने से ज्यादा बेहतर तब होगा अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखिए, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखिए, अपने अखलाक में आई लव मोहम्मद लिखिए। क्योंकि लोगों, मैं आपको बताऊं, अगर आई लव मोहम्मद को आपने किसी कागज पे लिखा, हो सकता है दुनिया का कोई शातिर इंसान उस कागज को फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा, बैनर को कोई फाड़ सकता है। अगर आपने इश्तिहार पे आई लव मोहम्मद लिखा, उस इश्तिहार को कोई फाड़ सकता है। लेकिन अगर दिल की तख्ती पे आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया तो मरते दम तक यही कहेंगे, या रसूल अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और पूरा मजमा बोलना, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ। पूरा मजमा, हम आए यहाँ। उठे भी वहां, उठे भी वहां। अब एक बात आखिरी सुनिए भाई, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी माँ बाप की नाफरमानी, ऊंचा बोलो, वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करे। अगर जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो तो बताइए, क्या बेटी का हक मार सकता है? या तो दूसरों का हक छोड़िए, अपनी बेटी का हक लोग मार के बैठे हैं। 4 बेटे हैं हजरत, तो चारों को जमीन जिंदगी ही में लिख दिया। एक बेटी अगर 1 डिसमिल जमीन मांग लेना तो बाप का कलेजा फटने लगता है। याद रखिएगा, ये भी हुकूकुल इबाद है। बेटी अगर खड़ी हो जाएगी, उस बेटी के लिए जान कुर्बान नहीं करते, उस बेटी को साइड कर देते हो। जिस बेटी के बारे में हुजूर ने फरमाया, दुनिया वाले बेटियों से को जिंदा कब्र में डालते गए, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा है। उस बेटी के से आप बुग़्ज़ रखते हो, उस बेटी का हक मार के बेटों को देते हो। और मैं एक बात आखिरी कह दूं, कह रहे भाई, बेटी तो वो होती है ना कि अगर रात के 12 बजे आप चौक चौराहे से उठ के घर जाना, तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रात के 12 बजे दरवाजा अगर बेटी खोलती है, आपके घर में जवान बेटी है, बेटी को समझो रात के 12 बजे ठंडी में जनवरी के महीने में पहुंचे। अगर बेटी है ना, तो मालूम है अगर है बेटी को कि मेरा बाप ठंडी रोटी नहीं खाता है, ठंडी सब्जी नहीं खाता है, तो वो कोई दूसरी नहीं बल्कि वही बेटी अपने बाप को कड़ाके की ठंड में रात के 12 बजे